Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Anubhav and in today's video I am going to discuss some useful and important daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end. मुझे गाड़ी खड़ी करने में कोई परेशानी नहीं हुई. When the place was accurate, you can definitely park your car somewhere without facing any problem. So you can say I had no trouble parking. मुझे सोने में कोई दिक्कत नहीं हुई. Whenever you have got a good place to sleep, so you can say I had no trouble sleeping. I had no trouble sleeping. उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई. दैट मीन्स nobody was disturbing him, nobody was making noise around him. He had no trouble studying. He had no trouble studying. मुझे तुम्हारा घर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई. I had no trouble doing something. ये एक आप ऐसे करके स्ट्रक्चर है, आप बना सकते हो लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस. I had no trouble finding your house. तुमने हमारे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं. You have caused us a lot of trouble. You have caused us a lot of trouble. तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम पढ़ नहीं सकते. Your trouble is that you can't study. Your trouble is that you can't study. तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम मुझे समझ नहीं सकते. तो इसकी इंग्लिश होगी Your trouble is that you can't understand me. Your trouble is that you can't understand me. वो मुझे अपनी दिक्कतें बताता है. He tells me his troubles. He tells me his troubles. It is present indefinite tense. मैं उसे अपनी बताता हूँ. I tell him mine. So it's one of the best way to share each other's pain, because whenever we are facing any difficulties we have nobody to discuss with. So it's the best way you can share your feelings with your bestie. क्या कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है? Is anything troubling you? Is anything troubling you? It is present continuous tense and ing will be used over here along with the helping verb are. Is, am, are. So it's a rule of present continuous tense. मैं ये तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं कर सकता हूँ. I can't do this without your consent. I can't do this without your consent. मुझे जगह ढूंढने में थोड़ी परेशानी हुई. I had a little trouble finding the place. I had a little trouble finding the place. मुझे नई नौकरी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई. I had no trouble finding a new job. I had no trouble finding a new job. मैं एक नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ. तो इसकी इंग्लिश होगी I am looking for a new job. I am looking for a new job. मुझे नाम याद रखने में दिक्कत होती है. तो इसकी इंग्लिश होगी I have trouble remembering names. I have trouble remembering names. मैं जानता हूँ कि वो बहुत परेशानी में हैं. I know he is in lots of trouble. I know he is in lots of trouble. मैं परेशानी में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. तो इसकी इंग्लिश होगी I am in trouble. I need your help. I am in trouble. I need your help. Will you help me out? मैं कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहता हूँ. I don't want to cause any trouble. I don't want to cause any trouble. मुझे उसका ऑफिस ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई. I had no trouble doing something. ये एक स्ट्रक्चर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. I had no trouble finding his office. I had no trouble going there. तो ऐसा बना सकते हो. वो ज़रूर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा. He must be waiting for me. He must be मतलब बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपकी. Must be waiting for me. मुझे उसे मनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई. He was easily convinced by me. I had no trouble convincing him. I had no trouble convincing him. वो खास तुम्हारे लिए आ रहा है. It is a sentence of present continuous tense. He is especially coming for you. He is especially coming for you. चलो ये बंद करते हैं. Let's stop this. It is imperative sentence. Let's stop this dispute and all and let's become a friend again. तुम कभी समय पर नहीं आते हो. You never come on time. It is present indefinite tense. You never
कम मतलब आना, समय पर, ऑन टाइम। मैं किसी को मुसीबत में डालना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गेट एनी वन इन ट्रबल। आई डोंट वॉन्ट टू गेट एनी वन इन ट्रबल। सो हेयर कम्स अवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सो सेंटेंस है मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। सो यू आर सपोज टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन टू कमेंट सेक्शन बिलो। सो आप ट्रांसलेट कर सकते हो। क्या तुम मुझे बैलेंस बता सकते हो? इट मे बी अ बैलेंस ऑफ अ बैंक अकाउंट और एनी बैलेंस ऑफ योर्स यू आर आस्किंग फॉर टू नो। कैन यू टेल मी द बैलेंस? कैन यू टेल मी द बैलेंस? उसने अपना संतुलन खो दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द बैलेंसिंग ऑफ बाइसिकल। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द बाइसिकल। यू कैन से ही लॉस्ट हिज बैलेंस। आपको अपना बॉल पेपर बदल लेना चाहिए। इट हैज़ बिकम टू ओल्ड। यू शुड चेंज योर बॉल पेपर। शुड इज अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज यू शुड चेंज योर बॉल पेपर। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। इट्स अ गुड थिंग इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आपको कुछ नया करना चाहिए। यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। यू शुड ट्राई मतलब कोशिश करना, कुछ नया, समथिंग न्यू। यू शुड ट्राई समथिंग न्यू। ये मेरे लिए बहुत आसान था, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अ पीस ऑफ केक मीन्स बहुत आसान होना, वेरी ईजी टू डू। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ द वर्क इन विच यू आर वेरी मास्टर्स, इट्स ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी ईजी। ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन लाइक दिस। नथिंग विल हैपन लाइक दिस। आपको उसे बुलाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट call him. If you call him, he will spoil all the management of the party, and how we have arranged the party we only know. उससे पूछो वो क्या कहना चाहता है। Ask him what he wants to say. Ask him what he wants to say. मैं ऑनलाइन खरीदूंगा। I will buy online. Whenever there is any product which is not available offline, so you are going to buy it online automatically. ये ठीक रहेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इट विल बी ओके। इट विल बी मतलब रहेगा, ठीक, ओके, फाइन, ऐसा बोल सकते हो। किसी तरह मैंने ये किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। समहाउ किसी तरह, समहाउ मैंने ये किया, आई डिड इट। सेकेंड फॉर्म है डू की, ठीक है, डिड। तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। लुकिंग फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब ओवर हियर दैट मीन्स टू सर्च समथिंग। ओके, मैं अपना चार्जर ढूंढ रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम लुकिंग फॉर माई चार्जर। यू कैन रिप्लेस चार्जर विद एनीथिंग यू आर लुकिंग फॉर, यू आर फाइंडिंग। आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल, आई एम लुकिंग फॉर माई कॉम, ऐसे आप बोल सकते हो। तुम कभी भी अपना चार्जर ठीक से नहीं रखते हो। यू नेवर कीप योर चार्जर प्रॉपरली। यू नेवर कीप योर चार्जर प्रॉपरली। मुझे देरी हो रही है। इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आईएनजी इसमें यूज़ होगा। इन द मैन वर्ब आई एम गेटिंग लेट। देरी होना, गेट लेट, और गेट के साथ आईएनजी लग जाएगा, गेटिंग। ओके, आपको धीरे गाड़ी चलानी चाहिए। यू शुड ड्राइव स्लोली। स्लोली इज एन एडवर्ब ओवर हियर। यू शुड ड्राइव स्लोली, यू शुड राइड स्लोली। क्या तुम्हें मेरा नाम याद है? डू यू रिमेंबर माई नेम और यू हैव फॉरगॉटन माई नेम। तो आप किसी से भी इस तरह पूछ सकते हो, डू यू रिमेंबर माई नेम। तुमने अपनी औकात दिखा दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यू शोड योर स्टेटस। स्टेटस मतलब औकात, यू शोड मतलब दिखा दी, किसकी? अपनी। योर स्टेटस, यू के साथ योर आता है। वो अपने आप को क्या समझता है? वॉट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। वॉट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ। ये बेडशीट बहुत सुंदर है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस बेडशीट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस बेडशीट के साथ इसलिए आया है इज़ क्योंकि एक ही बेडशीट की हम बात कर रहे हैं। तुम अपना काम करो। यू डू योर वर्क। यू डू मतलब करना, अपना काम, योर वर्क। व्हेनेवर समवन इज पोकिंग हिज नोज इनटू अदर्स मैटर, तो आप बोल सकते हो अपने काम से काम रखो। तो आप ये भी स्टेटमेंट और सेंटेंस यूज कर सकते हो फॉर दैट गाय हु इज टेकिंग इंटरेस्ट इन समबडीज मैटर। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। अपना होमवर्क कर लो, अदरवाइज यू विल गेट द पनिशमेंट इफ यू विल गो टू स्कूल टुमारो एंड योर होमवर्क इज नॉट completed. So do your homework. Do your homework. It is imperative sentence. मैं बहुत सारे गेम खेलता हूँ। I play a lot of games. क्या होगी
होगी इसकी इंग्लिश? आई प्ले, मैं खेलता हूँ बहुत सारे गेम। अ लॉट ऑफ गेम्स, लॉट्स ऑफ गेम भी बोल सकते हो। हट जाएगा वहाँ से, आर्टिकल है जो। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। आई एम रीचिंग देयर, आई एम रीचिंग देयर विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर में। मुझे कितनी देर इंतज़ार करना होगा या फिर करना पड़ेगा? हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट, हाउ लॉन्ग विल आई हैव टू वेट। मैं इंतज़ार कर करके थक चुका हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं बोल बोल कर थक चुका हूँ, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। आई कांट वेट एनी मोर, क्या होगी इसकी इंग्लिश? आई कांट वेट एनी मोर। कांट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कैन एंड नॉट। वो आने वाला है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अबाउट टू कम। अबाउट टू का आप एक स्ट्रक्चर है, यूज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ होने वाली होती है तो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। तुमने मेरा मूड ख़राब कर दिया या फिर बिगाड़ दिया। यू स्पॉइल्ड माई मूड, किसी का मूड ख़राब करना, स्पॉइल करना किसी का मूड। यू स्पॉइल्ड माई मूड बाय रिफ्यूजिंग मी, मुझे मना कर कर। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। इफ़ आई एम राइट दैन गॉड विल हेल्प मी। तो ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। मेरी बात का बुरा मत मानना, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट माइंड माई वर्ड्स, डोंट माइंड माई वर्ड्स। आई डोंट थिंक वेन एवर आई एम सेइंग एनीथिंग, आई से वॉट कम्स टू माई माइंड। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ। आई डोंट नो वॉट हैपन्ड टू हिम, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता उसे क्या हुआ। वॉट हैपन्ड टू हिम। हमें हमेशा कुछ करते रहना चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी वी शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग, वी शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग, वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू डू समथिंग इन अवर लाइफ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। क्या होगी इसकी इंग्लिश? डोंट मेक मी मतलब मुझे मत दिलाओ क्या? गुस्सा। आप ऐसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं तुम्हें अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। आई विश यू अ हैप्पी जर्नी, आई विश यू अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी। ऐसे बोल सकते हो। मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू आस्क मी, यू आर नोबडी टू आस्क मी हाउ आई डिड दिस वर्क। बकवास मत करो, तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू एंड नॉट, इट इज इंपरेटिव सेंटेंस। डोंट टॉक मतलब मत बात करो, क्या? बकवास, नॉनसेंस बोल सकते हो, ठीक है। मेरी अभी मीटिंग है, आई हैव अ मीटिंग नाउ, आई हैव अ मीटिंग नाउ मतलब अभी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे अब जाना है, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू स्लीप नाउ, आई हैव टू ईट नाउ। ऐसे बोल सकते हो। वो तैयार है, ही इज़ रेडी टू रॉक, वो मचाने के लिए तैयार है। ही इज़ रेडी, नाचने के लिए तैयार है, डांस बोल सकते हो। नीचे बैठकर मुझसे बात करो, सिट डाउन एंड टॉक टू मी। सिट डाउन मतलब नीचे बैठ जाओ, एंड टॉक टू मी मुझसे बात करो, ये करो, डू इट, ये करो, डू एट। हंसो मत, डोंट लाफ, डोंट लाफ। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, आई विल किल यू, आई विल किल यू। क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। ये मैं हूँ, इट्स मी, इट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज इट्स मी। सो यही था आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा for improving your spoken English. And if you want to improve your English, so you can definitely subscribe to this channel, join with this channel, because I usually upload videos on English, daily use English sentences, and you can take it out sentences from my channel and you can use those sentences in your daily life whenever you are getting a situation like that. You are thinking that I need to use these sentences which I saw in that channel's video, so you can definitely use it. You can definitely have that situation
in your life, because we all have same situation almost, and you maybe have differ maybe a little bit variations in the situation, but everybody must have some situation which are common in everybody's life. ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल. कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन इन योर लाइफ.